Namaskar, my all dear student of class 12. I'm Shikha, your mentor to help you in the completion of your English syllabus for this session. In this video, I'm covering question answer or textual part of the chapter Going Places. That is the last chapter of main course book Flamingo, written by A.R. Barton. The complete name is Anthony Richard Henry Barton. This is the full name of the writer who has written this chapter. We have completed the line by line explanation. Let's move on towards the question answer. Question number 1. Where was it most likely that the two girls would find work after school? Sophie and Jency would soon pass out of their school. Only a few months were left, and Jency knew very well that both of them were earmarked for biscuit factory. Sophie had wild dreams about her career, and Jency was a realist. She knew that they did not pay well for shop work, and Sophie's father would not allow her to work there. Here two girls, about two girls, the story is there. तो वो ये बताते हैं कि सोफ़ी और जेंसी दोनों स्कूल गर्ल हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं बट उनके स्कूल कंप्लीट करने में. At one side, Sophie remains in her imaginative world, whereas Jency always remain in the reality. Both were belonging to the lower middle class family and their livelihood were reserved for biscuit factory. वो उनके दोनों के family के जो member हैं वो biscuit factory में काम करते हैं. And Sophie has a wild dreams. Wild dreams आप बोल सकते हो, the dreams that are impossible to achieve or very hard to achieve. और Jency हमेशा उसको समझाती है कि we are not meant to see these kind of dreams, and if we want to do work on some shop to earn the money so that we can open a boutique, so this is not possible. Why? Because Sophie's father would not allow her to work in any of the shop because they pay very less. But anyhow, Sophie was having this kind of imagination that she would definitely own a boutique when she would go out. So after the school, they were talking about these things. What were the options that Sophie was dreaming of? Why does Jency discourage her from having such dreams? So there were so many options about the Sophie's dreaming and Jency's continuous encouragement about her dreams. What were there? So Sophie wanted to open a boutique. This was her final thing, that she wanted to own a boutique. It would be the most amazing shop that city had ever seen. Alternatively, she would become an actress and have a boutique at the side business. She also thought of being a fashion designer. And then Jency had her feet firmly planted to the ground. She wanted Sophie to be sensible and drop all her utopian plans because all of them required much money and एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे ऑप्शंस बताए जा रहे हैं कि सोफ़ी सबसे पहले एक बुटीक ओन करना चाहती थी. वो कहती थी कि ये जो मेरी शॉप होगी इस सिटी की सबसे अमेजिंग शॉप होगी, ऑल द नेचुरल डिज़ाइन आई विल प्रेजेंट ओवर देयर. एंड आफ्टर दैट शी थॉट दैट टू अर्न द मनी, फॉर अर्निंग द मनी टू ओपन द बुटीक आई वुड रेदर बी एन एक्ट्रेस. मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी. वाई? बिकॉज एक्ट्रेस डोंट वर्क फॉर all the time, तो at the spare of the time I'll run or take care of my boutique as well as the side business. और या तो मैं एक फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी जस्ट लाइक द मैरी क्वेंट. बट जो जेंसी थी हमेशा उसको बोलती थी कि यू शुड कीप योर फीट फॉर्मली ऑन द ग्राउंड, मीन्स यू शुड बी इन रियलिटी, तुमको रियल वर्ल्ड में रहना चाहिए. एंड वो हमेशा यही चाहती थी सोफी से कि वो सेंसिबल रहे. सेंसिबल इज कॉल्ड, वो लॉजिकल बातें करे. वो हमेशा एक फैंटेसी की बातें करती थी एंड वो उसको बोलती थी कि बी practical and logical. It is not possible. Means we are not having so much money that you can be the owner of a boutique. तो वो एक बोलती है कि ठीक है तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी. एंड वन टाइम शी ऑल्सो सेड कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी क्योंकि मैनेजर को अच्छी पे मिलती है, तो जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब मैं अपना बुटीक खोलूंगी. देन जेंसी सेड मैनेजर, टू बिकम अ मैनेजर इज ऑल्सो नॉट सो ईजी टास्क. इट अ हायर पोस्ट एंड एट ऑल स्ट्रेट ऑफ यू कैन नॉट बी ऑन द पोस्ट ऑफ द मैनेजर. अब ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें वो ये करना चाहती थी, सोफ़ी उसको हमेशा बताती कि ये जितने भी प्लान हैं ये सारे फैंसी हैं क्योंकि इनके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए. इटोपियन प्लान्स आप बोल सकते हो इमेजिनरी. इमेजिनरी वर्ड जिसमें ईच एंड एवरीथिंग इज़ कस्टमाइज्ड.
ठीक है, जिसमें आप जो चाहो जिस तरह से चाहो वो हो जाता है, उसको यूटोपियन प्लान्स बोल सकते हो. वट एवर मीन्स ईच एंड ऑल कंडीशंस देयर विल बी ना in your favor. Whatever you want, as you want, you can mold them as that. So it is not possible. So she should leave all the utopian plans regarding this. Next question, why did Sophie wriggle when Geoff told her father that she had met Denny Casey? Wriggle is called, we can say, the moving action, moving any body part or just moving from one place to another in uneasiness. जब आप कुछ uneasy feel करते हो, थोड़ा सा nervousness feel करते हो, तो एक जगह से दूसरी जगह या अपने body parts को थोड़ा move करना, that is cause. So Sophie knew her father well. He would be angry if he knew of a meeting with young Irish footballer Denny Casey. She did not tell him. When Geoff told his father about it, he became angry and he turned Miss Head to look at her with disdain. Sophie wriggled where she was sitting at the table. It is not Miss, it is his hat, right? Okay. सो सोफी अपने फादर को बहुत अच्छे से जानती थी. उनको पता था कि इफ़ शी वुड टेल अबाउट द मीटिंग विद डेनी कैसी तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे और इसीलिए उसने उनको कुछ भी नहीं बताया. लेकिन जियोफ ने अपने फादर को सब कुछ बता दिया. व्हेन ही वाज सेइंग ऑल द थिंग्स, सोफी वाज देयर ओनली सिटिंग ऑन द टेबल एंड इन द रिएक्शन हर फादर गेव अ डिसडेन लुक. डिसडेन इज कॉल्ड, वी कैन से, नॉट केयर अबाउट एनीबडीज रिस्पेक्ट. ओके, सो नॉट हैविंग द केयर और नॉट हैविंग द रिस्पेक्ट अबाउट ऑफ एनीथिंग. बिकॉज उसके लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ थी डेनी कैसी से मिलना, उसके बारे में बात करना. बट अकॉर्डिंग टू फादर दिस वाज ऑफ नो इम्पॉर्टेंस. उनके अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा की इम्पॉर्टेंस की बात नहीं थी. तो इस तरह का वो उसको क्या देते हैं, इस तरह का वो उसको व्यू देते हैं, इस तरह का वो उसको लुक देते हैं कि जैसे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. एंड दैट्स वाई सोफी बिकेम अनईजी एंड शी wriggled from her place where she was sitting. Does Geoff believe what Sophie says about her meeting with Denny Casey? क्या Geoff ने उस पर बिलीव किया था? No. Geoff doesn't believe what Sophie says about her meeting with Denny Casey. First, he looks around in disbelief and says, it can't be true. Again, he says, I don't believe it. Sophie then narrates how Denny Casey came and stood beside her. Geoff asks her, what does he look like? So he doesn't seem to be convinced that Sophie met Denny Casey. तो यहाँ पर बहुत सारे justification Sophie देती है when Sophie discloses this thing before her brother, her elder brother. Then Geoff was not in any of the acceptance to विद दिस टॉक. वो नहीं मानता है कि सोफी वंस मेट डेनी कैसी. वो पूछता है उसके अच्छा कि कब मिली थी. दैन शी स्टार्टेड कि मैं उससे आर्केड में मिली थी, वो कैसा दिखता है. दैन शी बिगेन टू डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ डेनी कैसी. बट इवन दैन जियोफ वॉज नॉट सेटिस्फाइड वट एवर शी टोल्ड एंड वो उसको बोलती है कि मैं बिल्कुल डेनी कैसी के पास खड़ी थी. लेकिन जियोफ को कुछ भी समझ नहीं आता है एंड ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव ऑन हर. और फिर जब उसका अपीयरेंस पूछता है, उसके बाद वो जो अपीयरेंस डिस्क्राइब करती है, इवन दैन जियोफ वॉज नॉट कन्विंस्ड. तो हम देखा जाए कि वो जिससे अपने सीक्रेट शेयर करती है वो भी कन्विंस नहीं है. डज अ फादर बिलीव हर स्टोरी? क्या उसके फादर बिलीव करते हैं? नो. Sophie's father does not believe her story when Geoff tells him that Sophie met Denny Casey. His father looked at Sophie. It is Sophie. Okay. I think this HI is creating problem, right? HI is presenting here just like me. So this is Sophie, okay? The name is Sophie. With his disdain, and he ignores her totally. He thinks that it is yet another wild story, and he begins to talk about Tom Finney, another great football player. जब उसके जियोफ ने जब उसके फादर को ये बताया, देन फादर वाज आल्सो नॉट रेडी टू बिलीव ऑन दिस. उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात पे. ही गेव अ वेरी डिस्डेन टाइप ऑफ लुक टू हर स्टोरी एंड टुवर्ड्स हर एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट टॉम फेनी. उन्होंने टॉपिक ही बदल दिया. Instead of Denny Casey and Sophie, he started talking about Tom Finney. Tom Finney, another great football player of his era. अगर बोला जाए तो जब उनके टाइम पे था, अब वो नहीं खेलते थे because of he was not in the age to play. तो जब उनके era में खेलते थे तो उस टाइम पे वो बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे. Next question, how does Sophie include her brother Geoff in a fantasy of her future? Geoff was always the first to share her secrets. So she told
him about meeting Denny Kesey. She also told him about a plan to meet him next week, and she suspected areas of his life about which she knew nothing. She longed to know them, and she wished that someday he might take her with him. She saw herself riding there behind Geoff. तो वो अपने जियोफ को भी क्या अपने फैंटेसी वर्ड में शामिल करती है? हाँ, बिल्कुल करती है. वट एवर शी यूज टू थिंक, शी ऑलवेज शेयर विद हर यंग एल्डर ब्रदर जियोफ. उसको पता था कि जियोफ इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन ना हु इज द डिस्क्लोजिंग, हु इज गोइंग टू डिस्क्लोज हर सीक्रेट्स आउट. तो वो जो भी सोचती है अपने फैंटेसी के बारे में वो उसको बताती है, डेनी केसी के बारे में बताती है. एंड एट द अदर हैंड बिसाइड्स हर सेल्फ, और उसको ये भी बताती है कि वो उसको नेक्स्ट वीक मिलने वाली है. वो आगे के प्री प्लान एंड वट एवर द प्रेजेंट सिचुएशन और उसकी फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ उसको बताती है, शेयर करती है उससे. इसके अलावा शी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट हर ब्रदर एज वेल. वो जानना चाहती है कि वो कहाँ रहता है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या मतलब जगह है जहाँ वो जाता है. वो उसको बहुत ज़्यादा लॉन्च थी टू नो दैम. लॉन्च इज कॉल्ड वी कैन से ना विश्ड या डिज़ायर्ड. शी वॉज विश्ड टू नो ऑल द थिंग्स. उसकी इच्छा थी ये जानने की, और वो हमेशा उसको बोलती थी कि मुझे अपने साथ लेकर चलो. और वो ये सोचती थी, उसको पता था कि जियोफ विल नॉट डू दैट. वाई? बिकॉज देयर फादर वुड नॉट अलाउ दैम टू गो. अकॉर्डिंग टू हिम, सोफी वॉज वेरी लिटिल गर्ल, अभी बहुत छोटी थी, वो स्कूल की लड़की थी, तो उन्होंने मना किया था कि अभी इसको अकेले बाहर लेकर नहीं जाना है. बट शी ऑलवेज डिज़ायर्ड एंड विश्ड दैट सम डे जियोफ वुड टेक हिम. She would be sitting at the back of the motorcycle and at the Geoff, and they both were going somewhere, and then Geoff will also disclose so many things about his own life because she wanted to know उसके friends कौन से हैं, वो कहाँ रहता है, उसकी life में क्या चल रहा है. Geoff used to be very quiet, वो बहुत quiet and calm boy था, but in contrast Sophie just wanted to know everything about Geoff. Which country did Denny Kesey play for? Denny Kesey played for Ireland. वो आयरलैंड के लिए खेलता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनी. अच्छा, डेनी के बारे में उसने अपने भाई को बताया, उसके फादर को पता चल गया था, लेकिन जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जेंसी, उसको वो नहीं चाहती थी कि जेंसी को पता चले. वाई? जेंसी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन थिंग्स दैट डिड नॉट कंसर्न हर. शी वॉन्टेड टू नो अदर पीपल्स अफेयर्स. शी वुड स्प्रेड द न्यूज इन द होल नेबरहुड. एंड so Sophie didn't want Jency to know about her story with Denny. It may also be mutual rivalry or one-upmanship on her part. Sophie was startled to learn that Geoff had told Jency about her story with Denny. तो जेंसी किस तरह की लड़की थी? वो इंटरेस्टेड थी, बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आता था, दूसरों के मामले में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती थी. वो इस तरह की लड़की थी जिसको दूसरे लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो सब जानती थी. एंड उसके बाद आफ्टर नोइंग दैट शी स्टार्टेड स्प्रेडिंग ऑल द अफेयर्स इन द नेबरहुड. एक की बात दूसरे को बताना, लाइक दैट. मतलब वो इस तरह की लड़की थी. इसीलिए जो सोफी थी वो नहीं चाहती थी कि जेंसी को कुछ भी पता चले उसके और डेनी के बारे में, बिकॉज ये एक तरह की म्यूचुअल राइवलरी भी हो सकती है. राइवलरी आप बोल सकते हो किसी तरह का कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन का मतलब मीन्स शी वॉज नॉट रेडी टू टेल एनी थिंग अबाउट दैट, कि मैं तुमको नहीं बताऊंगी, कि मैंने अगर तुमको बताया तो तुम सबको बता दोगी, इस तरह का था. और ये सच भी था. दिस वॉज द रियलिटी. एंड वन अपमैनशिप. नाउ वन अपमैनशिप आप बोल सकते हो व्हेन द पीपल आर टेकिंग एडवांटेज, टू टेक एडवांटेज ऑफ द अदर पर्सन. ओके, तो ये भी चीज़ आप बोल सकते हो. एडवांटेज किस फॉर्म में? लाइक let me write first, to take the advantage of others. एडवांटेज किस फॉर्म में? लाइक जेंसी तो थी, वो उसकी फ्रेंड थी, तो अगर वो जेंसी को सब कुछ बताएगी एज अ फ्रेंड, शी वॉज हैविंग दिस राइट टू नो एवरीथिंग अबाउट सोफीज लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन, ऑल द अफेयर्स अबाउट सोफीज लाइफ. बट एट द अदर साइड जेंसी वॉज क्रिएटिंग अ थिंग्स, मीन्स शी वॉज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, दैट इफ शी वुड टेल ऑल द थिंग शी वुड गो आउट एंड स्प्रेड ऑल द थिंग्स. सो दिस one-upmanship, Sophie was very well aware about of Jency, and that's why she was not ready to tell anything to Jency directly. और जब उसको पता चलता है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, वो बहुत ज़्यादा वंडर करती है कि जियोफ ने उसके और डैनी के बारे में जेंसी को कैसे बताया. बट अल्टीमेटली रियलिटी क्या थी, फैक्ट क्या था कि जियोफ ने जेंसी को नहीं बताया था, जियोफ ने बताया था फ्रैंक को.
और फ्रैंक जो जेंसी का भाई था उसको बताया था, और उसको भी सिर्फ यही बताया था कि वो उससे मिली थी, कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, उसकी क्या बात हुई, कन्वर्सेशन क्या हुआ, विच वर द फर्दर प्लान्स, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया था. सो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जेंसी, सोफी डिड नॉट वांट टू टेल और डिस्क्लोज एनीथिंग टू हर. डिड सोफी रियली मीट डेनी केसी? अब यहाँ पे एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर है नो. Sophie did not really meet Denny Casey. She was very fascinated by the young Irish footballer. She imagined his coming. She sat in the park waiting for her Casey, and knowing that he would not come, she felt very sad. Sadness was a hard burden to carry. She was always lost in dreamy world where she imagined Casey meeting her. वो कभी भी एक बार भी डेनी कैसी से नहीं मिली. हाँ, उसने डेनी कैसी को देखा था. दे यूज टू वॉच मैच ड्यूरिंग द संडेज ऑन ईच एंड एवरी संडे. वो जाते थे सब फैमिली के साथ, लेकिन कभी भी वो फेस टू फेस पर्सनली डेनी कैसी से नहीं मिली. वो हमेशा अपने फैसिनेटेड वर्ड में रहती थी, टेम्पटेड थी, वो बहुत ज़्यादा टेम्पटेड थी, उसकी तरफ इंटाइस्ड थी डेनी कैसी की तरफ. वो यंग था, फेमस था, हैंडसम था, आयरिश फुटबॉल प्लेयर था, इमर्जिंग फुटबॉल प्लेयर था. वो हमेशा यही सोचती थी कि वो उससे मिलने आ रहा है. वो उसके जब उसको बोल के गई थी जियोफ को कि ही promised me to come and meet me for his autograph in our second meeting. उसका फर्स्ट मीटिंग गैलरी में बताती है, वो सेकंड मीटिंग वो बोलती है हम लोग मिलने वाले हैं. तो शी यूज्ड टू सिट इन द पार्क. वो बैठती थी वहाँ पे पार्क में, उसका इंतज़ार करती थी. बट बहुत देर इंतज़ार करने के बाद, बहुत वेट करने के बाद जब डेनी नहीं आया तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई. और ये सैडनेस जो थी उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड थी. it was just like a burden on her shoulder. Why? Because only she was there who was infused, nobody else was there. क्योंकि उसने जिसको भी बताया था किसी ने भी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया था. तो ये जो सैडनेस थी अकेले ही उसको सारी बियर करनी थी, and that's why it was like a burden. She always remained in or lost in dreamy world. हमेशा वो अपने dreamy world में रहती थी. Whether she was at home, going on or walking on the street, coming from anywhere, कुछ भी कर रही हो या फुटबॉल मैच में, वो हमेशा हर जगह अपने ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती थी. और वहीं पे उसी ड्रीम वर्ल्ड में उसने सोचा था कि वो कैसी से मिली थी. दैट वाज सो रियलिस्टिक ओनली इन हर माइंड बट नॉट इन रियलिटी. Which was the only occasion when she got to see Denny Casey in person. The only occasion when Sophie got to see Denny Casey in a person was when the family went to watch United on Saturday. Sophie, her father, and little Derek went down near the goal, and Geoff went up to his mates higher up. United won 2-0, and her idol Casey drove in the second goal. She saw the Irish genius going round two big defenders on the edge of the penalty area. He beat the hesitant goalkeeper from the dozen yard. Sophie glowed with the pride and she was very happy. तो यहाँ पे डेनी केसी एज अ पर्सन वो कब मिली थी? एज अ पर्सन. और यहाँ पे वो कैसे मिलती थी? इन ड्रीम. वो हमेशा उससे सपनों में ही मिली थी. और वो एज अ पर्सन, यानी कि बोलना चाहिए रियलिटी में फेस टू फेस वो कैसे मिली? वो उससे नहीं मिली थी. बस उसने उसको देखा था कब? ड्यूरिंग द मैच, जब वो अपनी फैमिली के साथ सैटरडे को मैच देखने जाती थी तभी वो उससे मिली थी. सोफी, उसके फादर, उसके दोनों भाई जब जाते थे वो सब साथ बैठते थे. जियोफ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता था. और वो मैच था जब उसने उसको देखा था व्हेन यूनाइटेड वॉन बाय 2 goals एंड द अपोजिट बाय नन, अपोनेंट डिड नन. और यहाँ पर जो सेकेंड गोल था, जो विनिंग गोल था, दैट वाज डन बाय केसी ओनली. वो देख रही थी किस तरह से उसने डिफेंडर के बीच में से पेनल्टी एरिया के बिल्कुल एज पर जाकर उसने गोलकीपर को हेजिटेट करते हुए, कंफ्यूज करते हुए डजन यार्ड से उसने गोल किया. सोफी वाज वेरी हैप्पी इंक्लूडिंग द अदर वन, एंड शी वाज ग्लोइंग विद द excitement, with pride, and this was the only reason. And she carried this thing just like in her imaginative world where she met personally with Denny Casey. Sophie and Jency were classmates and friends. What were the differences between them that show up in the story? This question comes lots of number of the times in the examination. दोनों में क्या अंतर था? दोनों friends तो थी. Sophie and Jency are
poles apart in taste and temperament. Sophie has fantastic dreams and floats in the fairyland. She is an incurable escapist who won't come out of her dreams. Jency is down to earth and realist. Sophie wants to do something sophisticated, and Jency knows that these things require a lot of money which their families do not possess. Now, Jency also knows that they were earmarked for the biscuit factory. She even advises Sophie to be sensible and practical, and Sophie considers Jency nosy and does not want to confide in her. तो यहाँ पे दोनों के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि जो सोफी थी वो हमेशा अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहती थी. दोनों ही अपने टेस्ट और टेम्परामेंट में बहुत ज़्यादा अलग थे. जो सोफी थी वो हमेशा अपने ड्रीम वर्ल्ड में फेरी लैंड में फ्लोट करती रहती थी. फ्लोट इज कॉल्ड तैरना, या हमेशा उसी में बनी रहती थी. जबकि जो जेंसी थी वो रियल वर्ल्ड में रहती थी. अपनी रियलिटी में उसको पता था कि देयर फैमिली आर रिजर्व्ड टू बी इन बिस्किट फैक्ट्री. वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करके काम चला रहे हैं अपना. मतलब दे आर नॉट ओनिंग सो मच मनी, बट इवन दैन वो सोचती है कि सोफेस्टिकेटेड लाइफ, हाउ टू बी सोफेस्टिकेटेड. शी जस्ट वांट टू डू समथिंग लाइक दैट द वेल्दी पीपल एंड द प्रेस्टिजियस पीपल यूज टू टेल. तो जेंसी इन सारी चीज़ों के बारे में जानती भी थी और वो बताती भी थी उसको कि वट एवर योर ड्रीम्स आर देयर, जो भी हमारी फैमिलीज पजेस करती हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन नॉट फुलफिल योर ड्रीम्स. बट इवन दैन सोफी ऑलवेज वॉन्ट टू रिमेन इन हर ओन वर्ड. एंड यहाँ पर ये एडवाइस भी करती है, कभी कभी सोफ़ी को एडवाइस भी करती है कि बी सेंसिबल, बी प्रैक्टिकल. सेंसिबल बनो, समझदार बनो, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें रहो. बट सोफ़ी ऑलवेज कंसिडर्ड जेंसी लाइक नोजी एंड डज नॉट वांट टू कन्फाइड इन हर. वो कभी भी उसमें ट्रस्ट नहीं करना चाहती थी. एंड वो हमेशा यही सोचती थी कि शी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन ना हु टेक्स इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर्स. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हु टेक्स इंटरेस्ट इन अदर अफेयर्स, जो दूसरों के मामले में ज़्यादा शो करते हैं अपना इंटरेस्ट. वो इस तरह का उसको मानती थी. सोफ़ी जेंसी को मानती थी इन अदर्स अफेयर. अफेयर्स मतलब अलग अलग जो किसी भी तरह के उनके कोई मामले हों, किसी भी तरह का कोई मैटर हो, तो कभी भी वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती थी. वो कभी भी उस पर रिलाई नहीं करती थी, बिलीव नहीं करती थी कभी भी उस पर. तो वो यही सिर्फ कारण था कि जेंसी जो थी सोफ़ी से पूछती थी, लेकिन सोफ़ी ने आज तक उसको कभी भी कुछ भी नहीं बताया था. How would you describe the character and temperament of Sophie's father? सोफ़ी के फादर के बारे में लिखा गया है, कैरेक्टर स्केच है. Sophie's father has a plumpy face, looking grimy and sweaty. उनका थोड़ा सा plumpy face था, fleshy, वो थोड़े से fleshy थे, serious रहते थे और वो बहुत ज़्यादा sweat करते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे. He doesn't seem to be a soft or sophisticated man. Sophie fears his aggressive manliness. He is realist and does not believe in his daughter's wildest stories. He loves watching football. He hopes young Cassie will be as good as Tom Finney. He wishes that the young footballer keeps away from all distractions. He shouts instructions to Cassie at the playground. When the Irish genius beats the hesitant goalkeeper, Sophie's father screams with joy and pride. He goes to a pub to celebrate his victory. तो यहाँ पे उनका थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच बताया गया है कि पर्सनली इन अपीयरेंस ही वॉज वेरी सीरियस एंड ग्रिम, और उनमें सोफेस्टिकेशन नहीं था. सोफेस्टिकेशन यू कैन से व्हेन अ कल्चरल्ड वे, ओके, टू बिहेव, टू टॉक, टू सिट, टू ईट, ओके, टू डील द सिचुएशन. तो सोफेस्टिकेटेड वे में नहीं था. वो बहुत नॉर्मल सिंपल से आदमी थे, मिडिल क्लास आदमी थे. लेकिन सोफी उनकी एग्रेसिव मैनलीनेस, जो मैनलीनेस मस्कुलाइन एग्रेसिवनेस थी, वो उससे डरती थी. तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बातें उनको नहीं बताती थी. वो जो थे वो एक रियलिस्ट थे, वो रियल वर्ल्ड में रहते थे. कभी भी सोफी की वाइल्ड और इमेजिनेटिव स्टोरी में बिलीव नहीं करते थे. उनको फुटबॉल मैच देखना अच्छा लगता था और वो हमेशा बोलते थे कि कैसी भी एक दिन अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनेगा लाइक टॉम फिनी. एंड व्हेन ही वाज इन द ग्राउंड ही यूज्ड टू पास द इंस्ट्रक्शन एज वेल टू कैसी. मतलब जो एक ऑडियंस बोलते हैं लाइक डू दिस, दैट टाइप ऑफ टैक्टिक यू हैव टू, वो इस तरह के काफ़ी इंस्ट्रक्शंस देते हैं. जब कैसी गोल कर देता है वो बहुत अपना जॉय भी अपना जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, वो दिखाते हैं. बहुत ज़्यादा खुश थे और वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, बाय गोइंग इन द पब आफ्टर द मैच. आफ्टर जब मैच ख़त्म हो जाता है वो पब जाते हैं और वो जीत को सेलिब्रेट करते हैं विद द प्राइड.
Why did Sophie like her brother Geoff more than any other person? From her perspective, what did he symbolize? सोफी अपने भाई को क्यों पसंद करती थी? उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो क्या सिंबलाइज करता था? पर्सपेक्टिव आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू हर वे ओपिनियन. So Geoff is the only person who listens to Sophie's fantasies and long cherished dreams. Her father is too bossy and aggressive. He hates Sophie's fantastic stories. Even little Derek makes fun of her growing rich. Her classmate Jancy is nosy and can't be trusted with a secret. Only Geoff can be trusted to keep all the secret of Sophie to himself. From her perspective, Geoff symbolizes an elder brother who has grown up and visited places unknown to her. She wished that someday her brother might take her to those places, and he is sympathetic and cautions her by telling her that Casey might have a strings of girl. He warns that he would never show up again. He speaks softly as not to break the heart of young dreamer. तो यहाँ पर देखा जाए तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं ऑफ जियोफ. अगर हम जियोफ की पर्सनालिटी की बात करें एज अ कैरेक्टर स्केच, देन ऑल्सो जियोफ जस्ट ओनिंग ऑल द पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स. एंड अगर सोफी के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी उसमें सारी चीज़ें ऐसी थी कि सोफी स्टार्टेड जस्ट बिलीविंग, और वी कैन से ना द ऑल टाइम बिलीव टू टेल ऑल अबाउट हर सीक्रेट्स. तो यहाँ पे बताया गया है कि जियोफ एक ऐसा था जो अकेला, उस फैमिली में जियोफ ही एक ऐसा था जो सोफी की फैंटासीज को, स्टोरीज को सुनता था, उसको टाइम देता था. अदरवाइज उसके फादर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे. जो छोटा भाई था वो भी उसका फन बनाता था, माँ के पास टाइम नहीं था. जेंसी थी, शी इज़ अ काइंड ऑफ गर्ल दैट शी टुक इंटरेस्ट एंड शी कैन टेक द एडवांटेज बाय टेलिंग ऑल द सीक्रेट्स ऑफ सोफी टू एवरीवन. तो वो उसको भी नहीं बता सकती थी. ओनली जियोफ वॉज देयर. एज फार एज द पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स जियोफ इज कंसर्न, तो वो अपने भाई की तरफ बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी टू नो अबाउट द प्लेसेस ही गोज ऑन एंड द फ्रेंड्स ही मीट्स ऑन. वो चाहती थी कि समडे जियोफ took her on his bike and just took her to the places where he used to go. वो जहाँ पे जाता है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी वो उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए. बट यहाँ पे एक हमको सिंपैथेटिक और कॉशंस का एटीट्यूड भी दिखाई देता है कि ही वॉज वेरी कॉशंस. ही शो हिज केयर टुवर्ड्स सोफी, टुवर्ड्स हिज सिस्टर बाय टेलिंग हर कि जो डेनी केसी के बारे में तुम बात कर रही हो, ही इज़ अ सेलिब्रिटी, ही मस्ट हैविंग द स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स. उसके पास तो लड़कियों की लाइन लगी होगी. व्हाई आर यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन हिम. एंड उसको वो वॉर्न भी करता है कि यू शुड स्टॉप शोइंग योर अफेक्शन टुवर्ड्स हिम. वो बहुत सॉफ्टली उसको बोलता था. वो जो भी उसको बोलती थी, अगर वो कुछ इनडायरेक्ट कमेंट नहीं करता था, कुछ कॉन्ट्रेरी कमेंट, बट इवन देन ही पेशेंटली लिसन टू her, and that was enough for Sophie कि कोई तो है उसकी बातें सुनने वाला, जो ड्रीमी जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको कंसर्न भी शो करता था. इसीलिए जो सोफी को लगता था कि he was the only person who was taking interest in her stories. What socio-economic background did Sophie belong to? What are the indicators of a family's फाइनेंशियल स्टेटस? तो हम बोले ये पूरा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा है. इसमें आपका पूरी जितने भी मेंबर्स हैं उनका क्या काम है, उनका स्टेटस क्या है, वो सब हमको इससे पता चलेगा. सोफी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. शी इज एन escapist and has wild dreams. She dreams of things she can't have in real life. Jancy tell her that boutique needs a lot of money, and Sophie knows that the family doesn't have money, and she says, if ever I came into money, I'll buy a boutique. Even little Derek understands her unrealistic nature. Geoff's occupation, ये हमारा सोफी का आया. Now Geoff's occupation reflects their socio-economical background. He is an apprentice mechanic. He travels to his work each day to the far side of the city. His jacket is shapeless. His father lacks sophistications. उसके father में sophistication नहीं था. And he is a heavy breathing man. He sits in his waist at the table. He grunts and tosses one of the little Derek's comma. And Sophie's father goes up to pub on the bicycle. All these indicators confirm that lower middle class families बैकग्राउंड. तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया गया है और उनकी बैकग्राउंड कैसे शो होता है कि वो लोअर मिडिल क्लास के थे. तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो सोफी है, शी इज़ एन एस्केपिस्ट. एस्केपिस्ट इज द पर्सन हु वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी, ऑलवेज रिमेन इन देयर ओन वर्ल्ड. एंड
not ready to accept the reality. वो हमेशा अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहती थी एंड घर पे भी जब वो आती थी शी वॉज नॉट फीलिंग वे क्वाइट वेल एट होम. उसको पता था कि उसके पास फैमिली के पास मनी नहीं है. वो जब भी कहती थी कि मैं एक बुटीक ओन करूँगी बट आई अरेंज द मनी एट माई ओन. तो ये सारे अनरियलिस्टिक नेचर थे उसके सोफ़ी के. वो हमेशा उन्हीं में रहती थी. जो जॉब का ऑक्यूपेशन था उससे भी पता चलता था कि हाँ उनका सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास था. ही वॉज एन अप्रेंटाइज मैकेनिक. अप्रेंटाइज आप बोल सकते हो अंडर ट्रेनिंग या ट्रेनी. वो काम सीख रहा था मैकेनिक का. तो वो बहुत दूर जाता था वो काम सीखने के लिए. काफ़ी दूर जाता था सिटी में. उसकी जो जैकेट थी वो शेपलेस थी बहुत ज़्यादा. उसके पास कपड़े नहीं थे फिटिंग के. जो फादर थे उसके उनके उनमें बिल्कुल भी सोफिस्टिकेशन नहीं था. वो हैवी ब्रीदिंग मैन थे. अपनी टेबल के वो अपनी टेबल और चेयर पे कैसे भी मतलब ड्राइंग रूम में ऐसे ही अपनी वेस्ट में बैठ जाते थे. वो ग्रंट्स करते थे, टॉसेस करते थे लिटिल डायरेक्ट्स के जो चीज़ें थी. शूज़ फ्रॉम वन चेयर टू सोफ़ा. ग्रंट्स इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो हार्श साउंड. ओके, हार्श वॉइस या हार्श साउंड जिस तरह की निकलती है मेंस की. वो टॉसेस मतलब फेंकना. डेरिक का जो शूज़ था एक चेयर से उन्होंने सोफे पे फेंक दिया था. और देयर इज़ अ स्टोव और द सेम रूम देयर वर डर्टी. आई थिंक आई लेफ्ट दिस लाइन. वॉशिंग इज़ द पाइल. एक तरफ स्टोव जल रहा था उसका पूरा घर में स्मोक फैला हुआ था. दूसरी तरफ एक कॉर्नर में वॉशिंग पाइल्स पड़े थे, बहुत सारे बर्तन पड़े थे. ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो दे शो एंड दे रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ लोअर मिडिल क्लास ऑफ देयर फैमिली. और उसके जो फादर थे उनके पास क्या व्हीकल था, बाइसिकल से वो पब जाते थे. ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हाँ उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास था. Sophie's dreams and disappointments are all in her mind. उसके ड्रीम्स भी वही थे, उसके डिसअपॉइंटमेंट्स भी वही थे. इस पे हमको कुछ लिखना है. Sophie is a young school girl belonging to a lower middle class family. She wants to rise from situation in which she finds herself. She is an incurable dreamer and escapist. She dreams of opening a boutique. Her classmate Jency, who had her feet firmly planted on the ground, tells Sophie that opening a boutique requires a lot of money and experience. She has neither of them. Sophie, who floats in the dreamy worlds of her own, dreams of becoming an actress, fashion designer, and she has dreams of a hero as well. She develops fascination of Denny Casey and Wonder Boy of the football player. तो यहाँ पे उसका ड्रीम के बारे में बताया गया है. क्या क्या ड्रीम थे उसके. इनक्योरेबल ड्रीम थे. क्योरेबल इज कॉल्ड दैट कैन नॉट बी क्योर, जिसका इलाज नहीं हो सके. तो सब उसको समझाते थे कि स्टॉप लिविंग इन द ड्रीम योर ड्रीम. बट वो किसी की भी नहीं सुनती थी. वो हमेशा अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहती थी. तो उस तरह के उसके ड्रीम वर्ल्ड थे वो जो क्योर के लायक नहीं थे. शी वॉज नॉट रेडी टू कम आउट फ्रॉम हर ड्रीम्स. शी ऑलवेज फ्लोट इन द ड्रीम वर्ल्ड. वो हमेशा वहीं रहती थी. अब सोफी उसको बोलती है कि ना तो तुम्हारे पास पैसा है ना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है. हाउ कुड यू ओपन द बुटीक. बट शी टोल्ड नो, मैं तो फिल्म एक्ट्रेस बन जाऊंगी, साइड में चला लूंगी. ओनली देन आई कैन हैव द मनी. फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, मैं मैनेजर बन जाऊंगी. मीन्स एनी हाउ शी वॉन्टेड टू कंप्लीट हर ड्रीम टू ओन द बुटीक. और उसके अलावा वो हीरो का भी सपना देखती थी. दैट वॉज द हीरो डेनी कैसी, अ वंडर फुटबॉल प्लेयर. She sees him in action only once when he scores the second goal of United. She imagines him coming to her and tells her brother about the meeting. She goes on waiting for him on the next day, but he does not turn up. She becomes sad and carries the burden of the sadness all the time. Thus her dreams and disappointments are the creation of her mind. यहाँ पे उसके disappointment के बारे में बताया है जो self created ही थे. She only once saw that Denny कैसी सबसे पहले बार देखा था when he did the second winning goal during the United 0-0 मैच. अब वहाँ पे उसने देखा था एंड उसके बाद वो हमेशा फैंटेसी करने लगी. उसने अपने भाई को बताया कि मैं मिली थी. एंड देन शी वेंट टू पार्क एज वेल. शी वेटेड लॉन्ग आवर्स एंड व्हेन शी वाज pathetic, exhausted because he didn't turn up. Turn up is called, we can say, come. वो नहीं आया वहाँ पर तो वो वहाँ से चली जाती है उदास होकर. और जब वो उदास होकर चली जाती है उसके बाद उसको लगता है कि ये जो सैडनेस है शी हैज़ टू कैरी द होल लाइफ. ये जो बर्डन है अकेले उसको लेना पड़ेगा, ये सैडनेस का बर्डन. इस तरह से जो ड्रीम्स और डिसअपॉइंटमेंट हैं वो दोनों ही उसके खुद के क्रिएशन है माइंड के, दैट वर नॉट रियल.
Next question, it is natural for teenagers to have unrealistic dreams. What would you say are the benefits and the disadvantage of such fantasies? It is a skill-based question, value-based question, not from the text. Here you can write your own thoughts. लगता है कि हाँ ये unrealistic dream होते हैं adolescent में, इसके benefit और कुछ disadvantage क्या हो सकते हैं वो लिखना है हमको. Now here, teenagers have boundless enthusiasm and ambitions. They have sweet dreams and go on fantasy. It is natural for them to do so. Every youth is a dreamer. Every great scientist or writer has a dream. Without something to aspire for, one can't strive to achieve that goal. Dreams lead to the golden gate of success. Some teenagers float in their world of fantasy. They have unreal dreams. It is just like child asking for the moon. Their feet are not in the mud, and they dream of the stars in the sky. Such fantasizing result is disappointment and disillusionment. A dreamer who fails to realize his dream is labeled as a failure. Those who realize their dreams becomes heroes and achievers in their spheres. I think it is better to have the dreams even if we fail to realize them. Who would have dreams if the teenagers don't? Will these gray-headed and gray-beard person, gray-headed and gray-beard person, they have dreams? Let the teenagers indulge in their natural activity and dream of a golden future. They will strive to translate them into reality. So at both side questions, both side answers have been given here. Okay, at one side, if you are having the dream, then you should be able to realize yourself in the real world as well. Means at one side your feet should be on ground and your ambition and dream should be on a sky. You should not completely float in the dream world. If you float, then obviously only disappointment and disillusionment you will get in your hand, nothing else. Disillusion is called the illusion or imaginative word. जब वो टूटता है तो आपको सिर्फ दुख मिलेगा और कुछ नहीं. इसीलिए means this is also very true that teenager must have the dreams. अगर dreams ही नहीं होंगे तो how can you fulfill them? जितने भी आज invention है, जो scientist हैं, जितने भी हमारे जो dreamers हैं, जिन्होंने आज अपने जो dreams हैं complete किए हैं by in the means of writing, by inventing so many things, by discovering, उन सबके dream थे कि मैं ऐसा करूँगा. तो ऐसा होना चाहिए. Teenager is the age to just go in the world of dream, but that should be in the realistic, within the realistic or within your limit, जिसको आप प्राप्त कर सको और जिसके लिए आप अपना हार्ड वर्क कर सको. कोई भी चीज़ हो उसके लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है. आपका ड्रीम आपके पास खुद चलकर नहीं आएगा. वट एवर इज़ देयर यू हैव टू स्ट्राइव फॉर दैट. ये भी बहुत सही बात कही है कि अगर टीनेजर ड्रीम नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? जो एडल्ट लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो तो ड्रीम देखेंगे नहीं. तो ऑब्वियसली मीन्स दिस इज़ द राइट, अगर बोला जाए तो दिस इज़ द राइट टू बी इन द imaginative world, to see the dream by the teenagers. So if the dream can be turned in the reality, then the family should also support towards that. But if the teenager is totally floating in the dream, that is not at all possible, just like in the case of the Sophie, then Gen Z's like person must be there. जैसे उसकी friend थी, okay, there was a negative side of Gen Z, but always she just wanted to realize Sophie कि we are in real world, we are not that kind of person who can afford to have the boutique. तो इस तरह के लोग भी होने चाहिए. तो यहाँ पे टीनेजर, अगर एक टीनेजर को इतना ज़्यादा सेंस है तो दूसरों को भी होना चाहिए. पढ़े लिखने होने का क्या फ़ायदा है फिर? ड्रीम्स देखो, बट यू शुड बी ऑल्सो अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, द पॉसिबिलिटीज, द हार्ड वर्क, द स्ट्राइवनेस दैट यू हैव टू पुट टू कंप्लीट योर ड्रीम्स, राइट? Now here the expressions or the group of the words have been given from the text and we have to just use in a literal sense, explain what they mean. हमको इनका meaning बताना है. Words had to be prized out of them like stones out of ground. So सबसे पहले जो phrase है उसका meaning है a tightening means extract. These are the phrases meaning words had to be prized out of him. Words had to be prized out of him. यहाँ पे words की बात हो रही है, letters की बात हो रही है. He was so silent that words had to be extracted from him like great difficulty or force. ये किसके बारे में बोला जा रहा है? ये Geoff के बारे में बोला जा रहा है. Why? Because he was very quiet. वो कैसा था? बहुत ज़्यादा quiet था. उसके जो मुँह से थे वो बहुत कम word निकलते थे. Means उसके से कोई बात निकलवाना, that was really very hard. तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है. यहाँ पे ही किसके लिए आया
आया है, जियोफ के लिए आया है कि वो बहुत ज़्यादा साइलेंट था, इसलिए वर्ड अगर कोई निकलते थे उसके मुंह से ऐसा लगता था कि somebody has given the prize, कि बहुत मुश्किल से उसके मुंह से वर्ड निकल रहे हैं एक प्राइज के फॉर्म में, आपको एक प्राइज मिला है. नेक्स्ट इज, दिस वॉज द फर्स्ट, नेक्स्ट इज सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रॉट. इसका मतलब है टाइटनिंग इन हर थ्रॉट, सोफी फेल्ट अ स्टिफनेस इन हर थ्रॉट एंड फेल्ट अपसेट. स्टिफनेस इन हर थ्रॉट का मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मोक. जब घर में स्मोक हो गया था उस रूम में, तो बिकॉज ऑफ द सफोकेशन शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली एंड दैट इज रिटन एज द स्टिफनेस ऑफ द थ्रॉट. वो दूसरे कमरे में चली जाती है. नेक्स्ट इज कीप्स हिज हेड ऑन शोल्डर. इसका मतलब है इफ ही इज अ सेंसिबल और इंटेलिजेंट, और इसका एक मतलब है नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट. ठीक है, ये कौन किसके लिए कह रहा है? ओवर कॉन्फिडेंट. ये बोल रहे हैं जो जियोफ के फादर हैं, वो डैनी कैसी के लिए बोल रहे हैं कि डैनी कैसी, जो आजकल के यंगस्टर्स होते हैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो डैनी कैसी नीड टू बी thorough attentive towards his match, only then he can be a best player, otherwise he would be distract. इसीलिए he needs to keep his head on the shoulder. उसको अपना जो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, उसको सेंसिबल रहना है, इंटेलिजेंट रहना है. They made their weekly pilgrimage. ये है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ, ये सारे फ्रेजेस हैं जिनके हमने आंसर बताए हैं. वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम. नाउ ये है दे वेंट टू सी द फुटबॉल मैच एवरी वीक इफ दे वर विजिटिंग अ होली प्लेस. लाइक दे आर विजिटिंग अ होली प्लेस. पिलिग्रिमेज का मतलब ही होता है तीर्थ यात्रा करना, जैसे किसी श्राइन पे, टेम्पल पे जाना. बट यहाँ पर दे किसके लिए आया है? ये आया है सोफी की फैमिली के लिए. जो सोफी की फैमिली थी उसके लिए तो यही पिलिग्रिमेज था कि वो हर सैटरडे को कहाँ जाते थे? मैच देखने जाते थे, उनके लिए यही पिलिग्रिमेज था. लास्ट आपका फ्रेज है घोस्ट पास्ट मेकिंग अ साइलेंट मूव और रनिंग टू डोज और डिसीव. इसका मतलब क्या है? घोस्ट पासिंग, लाइक शी सॉ हिम घोस्ट, यस शी सॉ हिम घोस्ट पास्ट और लंबरिंग डिफेंडर्स. लंबरिंग डिफेंडर्स का मतलब है साइलेंट मूव और रनिंग टू डोज और टू डिसीव. जो अपोनेंट हैं, अपोनेंट खिलाड़ी हैं, वो धीरे धीरे जैसे घोस्ट वॉक करते हैं इन अ वेरी ऑकवर्ड मैनर, किसी को पता नहीं चलता, अचानक से आ जाते हैं. अगैन दिस इज इमेजिनरी, बट इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है घोस्ट को. तो यहाँ पर वो घोस्ट को कंपेयर कर रही है द अपोनेंट प्लेयर्स, जो ऑकवर्ड वे में आते हैं और अचानक से डिसीव करने की कोशिश करते हैं, सो दैट द स्पोर्ट्स प्लेयर, द अपोनेंट प्लेयर वुड नॉट बी एबल टू जस्ट ड्रॉप द गोल, टू ड्राइव द गोल. वो गोल नहीं कर पाए. तो वो उस तरह के, ये किसके लिए आया है? अपोनेंट प्लेयर्स के लिए आया है घोस्ट, जो उसने बोला है. ठीक है, अपोनेंट प्लेयर्स. Opponent players of what? Of football team, right? So with this we have completed the entire textual part. Now you just go, you can go to some extra question answer as well. आप वो भी कर सकते हो, but the best part will be just go through the textual part and try to solve the previous year's question. वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे इसमें. बट टेक्स्ट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्स्ट से जो आप लाइंस लिखते हो आंसर में, दैन एग्जामिनर इज़ ऑल्सो अवेयर अबाउट दैट कि हाँ इसने पढ़ा है, टेक्स्ट पढ़ा है. तो एक बार चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे, राइट? सो वी हैव एंटायरली कंप्लीट दिस चैप्टर. हियर वी come up or end with the main course book as well. Now some of the poems are left, 2 poems are left that I'll complete, and after that we will carry on towards the supplementary book. Okay, till then take care.